تو کرسمس ان اسلام، ٹھیک ہے، اس پہ خوئستانی صاحب نے ویڈیو بنائی ہے اور کرسمس کے دن ہی آئی ہے، تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. دیکھ کرسمس، میری Merry Christmas. دنیا کا سب سے بڑا فیسٹیول. یہ اتنا بڑا فیسٹیول ہے کہ مسلمانوں کی عیدیں جتنا پیسہ 10 سال میں بناتی ہیں اس سے بھی زیادہ پیسہ کرسمس کے صرف 1 سال میں بنتا ہے. لیکن آخر یہ کرسمس منایا کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ آج دنیا کے سب سے بڑے ریلیجن کرسچینٹی کا یہ ماننا ہے کہ اسی دن، کرسمس کے دن، جیزس عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ اگر یہی دن 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے ہے تو پھر مسلمان اسے کیوں نہیں مناتے؟ کیونکہ یہاں پر ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے. آج سے 2000 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے ایک چھوٹے سے شہر میں ایک میریکل سے پیدا ہوئے. یہ وہ زمانہ تھا جب فلسطین میں تو یہودی آباد تھے ہی، لیکن یہاں پر یہودیوں کی حکومت نہیں تھی. حکومت اس وقت کی ایک بہت بڑی سپر پاور رومن ایمپائر کی تھی. جب رومن ایمپائر اپنی طاقت کی پیک پر تھی اور یہاں کے بادشاہ کا نام تھا سیزر اوگسٹس، جو رومن ایمپائر کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا، اور اس کے نام کو، اوگسٹس کو، آج ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ اسی اوگسٹس کے نام پر سال کے ایک مہینے کا نام بھی رکھا گیا. جیسے اوگسٹس اپنی طاقت کی پیک پر پہنچا، اس نے وہی غلطی کی جو ہمیشہ ہر بادشاہ اس پوزیشن پر پہنچ کر کرتا ہے. اوگسٹس اپنے آپ کو ایک عام انسان کی بجائے ایک خدا، گاڈ کہلوانے لگا، اور پورے رومن ایمپائر میں لوگوں سے اپنی عبادت کروانے کے لیے اپنے نام کے ٹیمپلز بنوائے. اگر ہسٹری کو دیکھا جائے، جب بھی کوئی شخص اس لیول کی طاقت تک پہنچتا ہے تو اللہ اس کے غرور کو توڑنے کے لیے بالکل موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک مائٹی پروفٹ بھیجتا ہے. تو اسی سیزر اوگسٹس کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام بھی یہیں پر رومن ایمپائر کے انڈر فلسطین میں یہودیوں کے ساتھ بڑے ہوئے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام بچپن سے اپنی ایج کے باقی سارے نارمل بچوں سے بہت ہی ڈیفرنٹ تھے، کیونکہ بچپن میں ایک بار عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں مریم کے ساتھ ایک بازار میں گھومتے گھومتے کہیں غائب ہو گئے، اور کافی ڈھونڈنے کے بعد بھی وہ پورے بازار میں کہیں نہیں ملے. تو آخر ان کی ماں انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہودیوں کے ایک ٹیمپل کی طرف گئی، جہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ینگ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کے بڑے یہودی علماء کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے تھے، اور ان کے کوسچنز کو سن کر یہودی اسکالرز کے چہرے بالکل غصے سے بھرے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے سامنے ایسے کوسچنز کرنے کی اب تک کسی میں جرت نہیں تھی. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں بڑے ہوتے گئے، اور آگے جا کر انہیں اللہ کی طرف سے ایک بہت ہی یونیک پاور ملی، جس میں وہ کسی بھی بیمار شخص کو صرف ایک انگلی کے ٹچ سے بالکل ٹھیک کر دیتے تھے. اور اپنی اس پاور کو یوز کر کے عیسیٰ علیہ السلام غریب لوگوں کی مدد کرنے لگے. اور جیسے جیسے لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی اس طاقت کا پتہ چلا تو وہ دور دور سے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے لگے، اور اسی طرح آہستہ آہستہ عیسیٰ علیہ السلام کی پاپولیرٹی پورے فلسطین میں پھیلنے لگی. آخر عیسیٰ علیہ السلام اتنے فیمس ہو گئے کہ وہ جس بھی شہر کی طرف جاتے تھے وہاں کے سارے لوگ انہیں ویلکم کرنے کے لیے اس شہر سے باہر نکل آتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی پاور سے ان سب کی بیماریاں دور کر دیتے تھے. یہاں تک تو سب بالکل ٹھیک تھا، لیکن آہستہ آہستہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے فالوورز کو بٹھا کر ان کے سامنے سپیچز کرنے لگے، اور ان سپیچز میں وہ بار بار لوگوں کو یہ سمجھانے لگے کہ آج ہمارے اس ریلیجن کو صرف اور صرف ان یہودی اسکالرز نے تباہ کیا ہے، جو اپنے ٹیمپلز میں بیٹھ کر صرف غریب لوگوں سے چندہ جمع کرتے ہیں، اور صرف کچھ پیسوں کے لیے یہی اسکالرز تورات کی آیات کو چینج کر کے اپنی مرضی کے فیصلے لکھتے ہیں. اور ہر سپیچ میں بار بار عیسیٰ علیہ السلام یہودی اسکالرز کو منافق کہہ کر پکارنے لگے. یہ سب سننے کے بعد یہودی عوام تو عیسیٰ علیہ السلام کی ان باتوں سے بہت انسپائر ہوتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی ان باتوں سے یہودی اسکالرز کے دھندے خراب ہونے لگے، جس کی وجہ سے یہودی علماء کے دلوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سخت نفرت پیدا ہوئی، اور وہ یہ پلاننگ کرنے لگے کہ کسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو مار کر ان سے اپنی جان چھڑا دے. لیکن سپر پاور رومن ایمپائر کی حکومت میں ایسا کرنا امپاسبل تھا. لیکن یہ سب بھی بہت جلد بدلنے والا تھا، کیونکہ آہستہ آہستہ عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں اتنے فیمس ہو چکے تھے کہ وہ فلسطین میں جہاں بھی جاتے تھے ہزاروں لوگوں کا کراؤڈ انہیں دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتا تھا. آخر ایک دن عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے کیپٹل جیروسلم کی طرف گئے. جب لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا تو ہزاروں لوگ ان کو ویلکم کرنے کے لیے
सिटी से बाहर निकल आए और उनकी सवारी के सामने खजूर के दरख्त की शाखें फेंकने लगे, जो उस जमाने में हाईएस्ट रिस्पेक्ट दिखाने का एक तरीका था। रोमन एम्पायर के जनरल्स ये सब देखकर हैरान हो गए कि आखिर ये कौन आ रहा है जिसे लोग बिल्कुल एक बादशाह की तरह रिस्पेक्ट दे रहे हैं। नाउ ईसा अलैहिस्सलाम की ताकत को देखकर रोमन एम्पायर के जनरल्स उनसे डरने लगे और यहूदी उलमा तो उनसे पहले ही नफरत करते थे। तो अब ये दोनों मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की साजिश करने लगे, जिसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने सबसे क्लोज 11 या 12 फॉलोअर्स के साथ अपना आखिरी डिनर किया और फिर अल्लाह ने उन्हें आसमान की तरफ उठा लिया। लेकिन क्रिश्चियंस का मानना है कि इसके बाद उन्हें मार दिया गया। अब ईसा अलैहिस्सलाम तो दुनिया से चले गए, लेकिन यहाँ फलस्तीन में उनके 11 फॉलोअर्स ने फैसला किया कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की टीचिंग्स को पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले इन फॉलोअर्स ने यहूदियों को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन ऑफ कोर्स यहूदियों ने ईसा को नहीं माना, तो इनको क्या मानेंगे। तो ये फॉलोअर्स यहूदियों को छोड़कर दुनिया के बाकी लोगों तक ईसा अलैहिस्सलाम का मैसेज पहुंचाने लगे और यहूदियों के बिल्कुल ऑपोजिट बाकी दुनिया में क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से फैलने लगी। और इन्हीं नए फॉलोअर्स में से एक का नाम सेंट पॉल था। आज की दुनिया की क्रिश्चियनिटी में सेंट पॉल का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि पॉल से पहले लोग ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ एक पैगंबर और अल्लाह का बंदा समझते थे, लेकिन पॉल ने पहली बार दुनिया में एक कॉन्सेप्ट लाया कि ईसा अलैहिस्सलाम कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के बेटे और खुद भी एक खुदा थे। आज पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं और इस सब की शुरुआत इसी पॉल से हुई थी। हालांकि पॉल अपनी पूरी जिंदगी में ईसा अलैहिस्सलाम से कभी मिला ही नहीं था। पॉल और उसके फॉलोअर्स की वजह से आहिस्ता आहिस्ता क्रिश्चियनिटी रोमन एम्पायर में फैलती गई, लेकिन यहाँ पर मसला ये था कि रोमन एम्पायर का रिलीजन क्रिश्चियनिटी के बिल्कुल ऑपोजिट था और वो उस जमाने में जुपिटर की इबादत किया करते थे। तो रोमन एम्पायर की इस अवाम को इम्प्रेस करने के लिए उस जमाने के क्रिश्चियंस ने अपने रिलीजन में कुछ चेंजेस किए। नंबर 1, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के नाम को चेंज करके एक कॉमन रोमन नाम रखा, जो आज इंग्लिश में जीसस बन चुका है। नंबर 2, रोमन एम्पायर के लोग ज्यादातर यूरोपियंस थे, मतलब बिल्कुल गोरे थे, और ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन के होने की वजह से थोड़े ब्राउनिश थे, और उस जमाने के व्हाइट लोग अपने आप को बाकियों से बहुत ऊपर समझते थे। तो अब इन्हें इम्प्रेस करने के लिए उस जमाने के क्रिश्चियंस ने जीसस की पेंटिंग्स बनाना शुरू की, जिसमें जीसस को बिल्कुल यूरोपियंस की तरह व्हाइट दिखाया गया। मतलब ये दुनिया में आज जीसस की सबसे पुरानी पेंटिंग है। जीसस की यही पेंटिंग्स आज दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग्स हैं, क्योंकि आज से कुछ ही साल पहले जीसस की ही एक पेंटिंग दुनिया में सबसे महंगी बेची गई $450 मिलियन में, और जिसे खरीदा किसने? Mohammed bin Salman is the actual buyer of a Leonardo for a record-breaking $450 million at a Let's come back to the story. क्रिश्चियनिटी में इन चेंजेस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता क्रिश्चियनिटी रोमन एम्पायर में बहुत तेजी से फैलने लगी और क्रिश्चियंस इतने बढ़ गए कि रोमन एम्पायर के बादशाहों ने सोचा कि अगर क्रिश्चियंस ऐसे ही बढ़ते गए तो ये तो हमारे रिलीजन जुपिटर के रिलीजन को बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो आखिर रोमन एम्पायर के बादशाह ने फैसला किया कि अब क्रिश्चियनिटी को फैलने से रोकने के लिए हमें सारे क्रिश्चियंस को मारना होगा। जिसके बाद रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियंस पर ऐसा जुल्म किया कि इस जुल्म को कुरान में भी डिस्क्राइब किया गया है कि जब रोमन एम्पायर के बादशाह के जुल्म से कुछ यंग लड़के भागकर एक गार केव में छुप गए और वहीं पर अगले 300 साल तक सोते रहे, जिन्हें असहाबे काफ कहा जाता है। रोमन एम्पायर के इस सारे जुल्म के बाद भी क्रिश्चियंस अपने रिलीजन से पीछे नहीं हटे, बल्कि इन सारे जुल्मों से क्रिश्चियनिटी और भी तेजी से फैलने लगी और दुनिया के हर कोने तक पहुंचने लगी, यहाँ तक कि ये रिलीजन पहली बार इंडिया तक भी पहुंचा। आखिर ईसा अलैहिस्सलाम के 300 साल बाद क्रिश्चियनिटी इतनी पावरफुल हो गई कि रोमन एम्पायर के एक बादशाह कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट ने अपने रिलीजन को छोड़कर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। तो अब जब बादशाह ही क्रिश्चियन बन गया तो रोमन एम्पायर के सारे हालात बिल्कुल बदल गए और अब तक जो जुल्म क्रिश्चियंस पर किया जाता था उससे भी ज्यादा जुल्म जुपिटर के रिलीजन के फॉलोअर्स पर किया जाने लगा, क्योंकि उस जमाने का रूल था कि जो रिलीजन बादशाह का होगा वही पब्लिक का भी होगा। तो अब रोमन एम्पायर अपने पुराने रिलीजन को जबरदस्ती दुनिया से खत्म करने लगे, लेकिन ये भी कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि जुपिटर को मानने वाले भी इतनी आसानी से अपना रिलीजन छोड़ने वाले नहीं थे। तो अब यहाँ पर अगेन रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियनिटी को दोबारा बदलने की कोशिश की और अपने पुराने और नए रिलीजन को एक दूसरे के साथ मिक्स करने लगे, और यहीं से पहली बार क्रिसमस का कॉन्सेप्ट आया। जैसे कि रोमन एम्पायर के रिलीजन में हर साल दिसंबर में अपना सबसे बड़ा फेस्टिवल सैटर्नेलिया मनाते थे, जिसमें वो अपने खुदा सैटर्न की इबादत करते थे। और उनके इस फेस्टिवल में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी, पाइन ट्रीज
क्योंकि दिसंबर में यूरोप की सर्दी की वजह से सारे दरख्त बिल्कुल सूख जाते थे और सिर्फ पाइन ट्री अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी रहती थी, जिसे वो एक बहुत ही होली चीज समझते थे। और हर फेस्टिवल में इसी दरख्त के एक शाख को अपने घर में लाकर सजाते थे। तो अब रोमन एम्पायर ने अपनी पूरी सल्तनत को एक रिलीजन में जमा करने के लिए अपने पुराने रिलीजन से फेस्टिवल्स उठाए और अपने नए रिलीजन से जीसस क्राइस्ट और इन दोनों को मिला दिया और कहा कि जीसस क्राइस्ट दिसंबर के महीने के आखिर में पैदा हुए थे और सारे क्रिश्चियंस को हुक्म दिया कि इस दिन को 25 दिसंबर को बिल्कुल पुराने रिलीजन की तरह जीसस क्राइस्ट की बर्थडे मानकर सेलिब्रेट किया जाए। और इसी तरह इन दोनों रिलीजन्स को मर्ज करने के बाद अब पूरी रोमन एम्पायर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई। लेकिन आज दुनिया का कोई मुसलमान भी इस दिन को सही नहीं मानता और कुरान में भी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की स्टोरी बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि कुरान में है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो रहे थे तो उनकी माँ मरियम के पास सिर्फ एक खजूर का दरख्त था, जिस पर उन्हें हुक्म दिया गया कि घबराओ मत और इस खजूर के दरख्त को हिलाओ ताकि इससे तुम्हारे लिए ताजा खजूर गिर सके और तुम्हें ताकत मिले। खजूर का दरख्त। अब मसला ये है कि दरख्त पर खजूर तभी बनते हैं जब सख्त गर्मी का मौसम हो, which means according to कुरान ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जरूर गर्मी के महीनों में हुई होगी और दिसंबर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये सिर्फ कुरान में ही नहीं बल्कि क्रिश्चियंस भी ये मानते हैं कि उन्हें ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के सही दिन का पता नहीं है। जो भी हो, अब पूरी रोमन एम्पायर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुकी थी और जैसे ही रोमन एम्पायर के लोग क्रिश्चियंस बने, ये वही टाइम था जब अल्लाह ने असहाबे काफ को अपनी लंबी नींद से उठाया और उन्होंने उठकर एक दूसरे से पूछा कि हम ज्यादा से ज्यादा कितने वक्त तक सोए होंगे। तो उनमें से एक ने कहा कि 1 या आधा दिन। लेकिन जब वो बाहर निकले उन्हें पता चला कि यहाँ तो सब कुछ बिल्कुल बदल चुका है। इसके बाद क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन बना और आने वाले वक्तों में रोमन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, स्पेनिश एम्पायर की वजह से आज तक क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन है। और क्रिसमस दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल जिसमें हर साल पूरी दुनिया से लोग $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, जो हर साल के ईद से 10 गुना ज्यादा पैसा है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। क्रिसमस पहले के जमाने में सिर्फ एक छोटा सा फेस्टिवल था जिसमें लोग चर्च में जमा होकर अल्लाह और ईसा अलैहिस्सलाम को याद किया करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग इस सब से बोर होने लगे, तो अब लोगों को दोबारा क्रिसमस की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ लोगों ने क्रिसमस के इस फेस्टिवल में नई चीजें ऐड की, जैसे कि म्यूजिक, गाना, शराब। और क्रिसमस के इस फेस्टिवल में जो सबसे बड़ा एडिशन किया गया वो था सैंटा क्लॉज, कोका कोला, जो पुराने जमाने में एक रियल क्रिश्चियन स्कॉलर देखो ये था सेंट निकोलस थे, जो अपनी जेनरोसिटी की वजह से पूरे क्रिश्चियंस में मशहूर थे। आज से 150 साल पहले जब पहली बार सैंटा क्लॉज को इंट्रोड्यूस कराया गया तो वो ज्यादातर ग्रीन या ब्लू कपड़े पहनकर बच्चों को गिफ्ट दिया करते थे। लेकिन ऐसा ऐसा कोका कोला सैंटा क्लॉज को अपने एड्स में यूज करने लगा और इसके कपड़ों को ग्रीन कलर से बदलकर बिल्कुल अपने बॉटल्स की तरह रेड और व्हाइट बना दिया। आज क्रिसमस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जो सिर्फ क्रिश्चियन कंट्रीज में नहीं बल्कि चाइना और इंडिया जैसी बड़ी कंट्रीज में भी मनाया जाता है, जिसकी वजह से क्रिसमस के फेस्टिवल में पूरी दुनिया से $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का बिजनेस होता है। और ये $1 ट्रिलियन इतना ज्यादा पैसा है कि अगर मुसलमानों की 10 साल की ईदों को भी मिला दिया जाए तब भी वो 1 साल के क्रिसमस से कम बनते हैं। पीता कोका कोला क्यों नहीं पीते लोग? पीते, मैं पीता हूँ कोका कोला, वो ठंड में पीते हैं। आइसक्रीम भी खाते हैं लोग ठंड में। तो जैसे उन जिक्र किया कि तौरात जो थी उसको भी लोग चेंज कर देते थे अपने हिसाब से, ठीक है। इसलिए जो है जब कुरान आई, जब लास्ट में कुरान आई, उस पे बिल्कुल पाबंदी लगा दी कि ये लास्ट पैगंबर है और ये लास्ट जो है अल्लाह का संदेश है, ठीक है, यही है जो है, इसी को फॉलो करो, ठीक है। नहीं तो उससे पहले जो नबी जो लाए वो तौरात जो फॉलो करने, उसमें लोग अपना मिक्स कर देते थे। अब समझ में आया मतलब कि कुरान को क्यों नहीं, मतलब क्यों हिफाजत की जाती है, कुरान की हिफाजत क्यों की जाती है इतनी कि चेंज ना करो। क्रिसमस जो है ना, जैसे सारे त्योहार हो गए ना, उसमें ये होता है कि कुछ करना होता है ना। मतलब कि जैसे कि हिंदुओं का हो गया, मुसलमानों का जैसे रोजे हो गए, उसमें अब हमको कुछ व्रत रखना पड़ेगा, जैसे है ना, कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्रिसमस में कुछ नहीं है। क्रिसमस में बस घर पे केक ला के काट लो या पेस्ट्री काट लो, बस कुछ लाइट वाइट लगा लो। तो इसलिए लोगों को ना एक थोड़ा कैची सा है ना, मतलब अंग्रेजों वाली चीजें ही है ये। ये कहता है अंग्रेजों की जीन्स लोग पहनने लग गए, टी शर्ट पहनने लग गए कंफर्टेबल वाला। तो क्रिसमस भी ऐसा ही है कि लोग बस हैं
کہ چلو زیادہ کچھ نہیں. بچپن میں جیسے چھوٹے بچے آپس میں پیسے ویسے ملا کے کیک لے آتے تھے, پیسٹریاں لے آتے تھے, بس کاٹ لیا, بن گیا کرسمس, ہے نا. تو اس پہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ مطلب پرتھا ہو یا کچھ کرنا پڑے, ہے نا. تو یہ ایسا بنایا ہے کرسمس, اس لیے شاید اتنا بڑا تیوہار اتنے بڑے اس میں بنایا جاتا ہے فریم میں, ہے نا. تو بہت اچھی لگی ویڈیو, اتنی جلدی ان کی ویڈیو آ گئی, 25 تاریخ کو ہی آ گئی ہے. تو ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں اور کوئی ویڈیو جس پہ آپ چاہتے ہو ہم پرتیکریا کریں, ریئیکشن دے تو بتانا, ٹھیک ہے. پرتیکریا تھوڑا زیادہ بھاری ہو گیا ہے, ریئیکشن کرے بتانا. بائے.